قومی اسمبلی کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد، ارکان کی شرکت کورونا ٹیسٹ سے مشروط، مہلک وائرس کی صورتحال پر بحث ہوگی، 2 نشستوں کے درمیان 1 سیٹ خالی رکھی جائے گی، وقفہ سوالات ہوگا نہ نقطہ اعتراض، ایس او پی جاری۔ پہلے دن سے میں ویڈیو لنک پر سیشن کا کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کے دباؤ میں آ کر پارلیمانی کمیٹی نے غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا، کئی اراکین کا ٹیسٹ پازیٹو آنے کے بعد اسمبلی اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا، فواد چوہدری کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس، کورونا صورتحال کے پیش نظر ملکی معیشت پر غور، عوام کو دیے جانے والے ریلیف پیکیجز پر عمل درآمد کا بھی جائزہ۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث بند کاروبار کھل گیا، سندھ میں 50 روز بعد کاروباری سرگرمیاں بحال، ہفتے میں 4 دن صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک اجازت، بڑے شاپنگ مالز پر پابندی برقرار، کہیں ایس او پیز پر عمل درآمد تو کہیں خلاف ورزی، مارکیٹیں کھلنے پر دکاندار خوش، اوقات کار بڑھانے کا مطالبہ۔ حکومتی فیصلے کو ہم خوشائن قرار دیتے ہیں۔ کراچی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ 11-12 بجے جو روٹنگ ہوتی ہے عام 11 مہینے کی، تو اس حساب سے وہ چلتے ہیں، ان کا کسٹمر بھی اس حساب سے ہوتے ہیں کہ رات کا ٹائم ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا کام رات میں ہی ہوتا ہے، جو 6 سے لے کر 10 بجے کے درمیان کا ہوتا ہے، 4 گھنٹے۔ پنجاب میں بھی 47 روز بعد کاروبار اوپن، چھوٹی مارکیٹیں کھولنے کی اجازت ملتے ہی بازاروں میں چہل پہل، حجام اور بیوٹی پارلرز بھی کھل گئے، حفاظتی تدابیر نظر انداز، شہریوں کا ایس او پیز پر عمل درآمد پر زور۔ ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کسی کے لیے خطرہ نہیں بننا چاہیے۔ ماسک پہنے، فاصلہ رکھیں، سینیٹائزر یوز کریں۔ ماسک کی بات ہے، زیادہ تر لوگ نہیں پہن رہے، ہمیں پہننا چاہیے، یہ ہماری سیفٹی ہے۔ عوام ہے وہ بالکل ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ان کو چاہیے کہ وہ جو حکومت کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جانوں کو بھی یقینی بنائیں، ان کے جانوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، ہمارے جتنے سیل پرسن ٹوٹل سٹاف ہے سب نے ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال باقاعدگی سے وہ کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، خیبر پختونخوا میں بھی بازاروں میں رونقیں، خریداروں کا رش، پشاور میں حفاظتی اقدامات کے بغیر ہی کاروبار، شہریوں نے بھی ایس او پیز کو پس پش ڈال دیا، وفاقی دارالحکومت میں بھی کاروباری پہیا چل پڑا۔ بلوچستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن، کاروبار چل پڑا، کوئٹہ کے تمام تجارتی مراکز اور بازاروں میں خریداروں کا بے تحاشا رش، جگہ جگہ ایس او پیز کی خلاف ورزی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لاک ڈاؤن کھلتے ہی کورونا کا زور، ایک دن میں مزید 28 افراد جاں بحق، اب تک 667 اموات، 30,941 شہری متاثر، پنجاب 11,568، سندھ 11,480، خیبر پختونخوا 4,669 اور بلوچستان میں 2,017 کیسز، 8,212 مریض صحت یاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ننکانہ صاحب آمد، عثمان بزدار انصاف امداد پروگرام کا آغاز کریں گے، 25 لاکھ مستحق خاندانوں کو 12,000 روپے فی خاندان مالی امداد دی جائے گی، فیلڈ اسپتال کا دورہ بھی شیڈیول۔ انصاف امداد پروگرام کے لیے پنجاب بھر میں 6,000 سے زائد کیمپ، بایو میٹرک تصدیق کے بعد شفاف طریقے سے ادائیگی ہوگی، بزدار حکومت غریب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کر رہی ہے، فیاض الحسن چوہان۔ سندھ میں کورونا سے مزید 11 ہلاکتیں، تعداد 200 ہو گئی، کاروبار کو ایس او پی کے تحت کرنا ہے، انتظامیہ کسی کو ہراساں نہ کرے، حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ۔ کورونا ریلیف ایمرجنسی آرڈیننس کا معاملہ، حکومت سندھ نے گورنر کے اعتراضات دور کر دیے، وزیر اعلیٰ نے ترمیم کی سمری منظور کر لی، چیف سیکرٹری نے مسودہ عمران اسماعیل کو دوبارہ بھجوا دیا۔
कराची दुश्मनी पर मबनी फैसले करने के इल्जामात बेबुनियाद। पीटीआई रहनुमा फिर लसानियत को फरोग दे रहे हैं। सियासी मुखालिफिन मुश्किल की घड़ी में होश के नाखून लें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। वजारत तालीम में अहम इजलास बगैर नतीजा खत्म। बोर्ड ने सिफारिशात देने के लिए वक्त मांग लिया। तमाम बोर्ड इम्तिहानात कैंसिल हैं, कोई भाम नहीं। जुमे तक तमाम अमूर पर जामे ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर शफकत महमूद। चीनी इंक्वायरी कमीशन में वजीर आजम नहीं, मुझे बुलाया जाए। एक्सपोर्ट की इजाजत का फैसला काबीना ने ईसीसी की सिफारिश पर किया था। शाहिद खाकान अब्बासी के मुतालबे पर असद उमर का ट्वीट। कल से मगरबी सिस्टम की एंट्री। बालाई सिंध में बादल बरसने का इम्कान। शहर कायद में 13 से 16 मई तक बूंदाबांदी की पेशगोई। मौसम अबरालूद और समंदरी हवाएं चलती रहेंगी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। मुल्क में कोरोना सूरत हाल पर बुलाया गया कौमी असम्बली का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मोहलिक वायरस की सूरत हाल पर बहस होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, इजलास में शिरकत करेंगे। जबकि अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी है। 2 नशिस्तों के दरमियान 1 सीट खाली रखी जाएगी। SOPs जारी कर दिए गए हैं। जी हां, SOPs तैयार कर लिए गए थे, उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। किसी भी विजिटर को गैलरी में बैठने की इजाजत नहीं होगी। मजीद जानेंगे शाकिर सोलंकी से। शाकिर, बताइएगा क्या SOPs हैं, अमल दरामद किस तरह कराया जाएगा? जी बिल्कुल, कुछ देर में कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत शुरू होगा और पार्लियामेंट हाउस में बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र जो सहाफ़ी हैं, हर इदारे से एक सहाफ़ी को कार्ड इशू किया गया है और सहाफ़ियों के लिए भी कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो लाजिम करार दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस की जो पार्किंग एरिया है वहां पर टेस्ट के लिए इंतजाम किए गए हैं। सहाफ़ियों का भी टेस्ट किया जा रहा है और अरकान कौमी असम्बली का भी टेस्ट किया जा रहा है। वहां पर 2 गेट है पार्लियामेंट हाउस में, एंट्री गेट नंबर 1 और गेट नंबर 5, दोनों पर जो है थर्मल गन के जरिए टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। तमाम जो गुजरने वाले लोग हैं, अरकान हो, सहाफ़ी हो या स्टाफ के जो मुलाजमीन हैं उनका, और जो स्कैनिंग मशीनें भी लगाई गई हैं उनसे भी गुजरना पड़ रहा है तमाम अरकान को। ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज जो है करना, ये तमाम चीजें यहाँ पर की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर और अंदर भी। कुछ देर में इजलास शुरू होगा। मेंबरान की जो आमद का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। वफाकी वज़रा भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। असद उमर, गौस बख्श महर और कुछ दीगर मेंबरान पहुंचे हैं। अपोजिशन की तरफ से राजा परवेज अशरफ, शाजिया मरी, नवीद कमर, मियां जावेद लतीफ, परजीज ताहिर और दीगर भी पहुंच गए हैं। कुछ देर में इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा और कोरोना वायरस के हवाले से बहस की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने का शाकिर सोलंकी। तो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा है कि कौमी असम्बली का इजलास 3 घंटे तक चलाया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात बहुत बेहतर हैं। फैसला ये किया गया था कि कम से कम लोगों को, हर जमात के जो लीडरान हैं वो अपने लेके आएंगे। उसके साथ फैसला ये किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के लिए इजलास चलाया जाएगा एक रोज़ के अंदर। और अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उसमें हम फैसला करेंगे कि इजलास को कितने दिन तक चलाया जाएगा। पूरी दुनिया इससे मुतासर है और पूरी दुनिया में जो है कई लाख लोग जो है वो अमवात का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है अपने वसाइल में रहते हुए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम कर सके। और आपने जिस तरह देखा है कि एहसास प्रोग्राम के जरिए जिस तरह गरीबों को 12,000 रुपये कैश की पैसे दिए गए बगैर किसी MNA, MP, वजीर की सिफारिश के बगैर खुदकार निज़ाम के जरिए। दूसरी जानिब वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि कई अरकान और अमले के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद फैसला किया है कि आज असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। फवाद चौधरी ने कहा कि वो पहले दिन से वीडियो लिंक पर सेशन बुलाने का कह रहे हैं। अपोजिशन के दबाव में आकर पार्लिमानी कमेटी ने गैर दानिशमंदाना फैसला किया और मुल्क की सियासी क़यादत को गैर जरूरी खतरे में डाल दिया।
अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मौशी टीम का इजलास। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की मईशत पर गौर किया गया। आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेजेस पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मौशी टीम का इजलास हुआ। इस इजलास में कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की मईशत पर गौर किया गया। इसके अलावा आवाम को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेजेस पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया है। अहम इजलास आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ है, जहां पर कोरोना से एक जानिब लड़ा जा रहा है, वहीं पर मुल्क की मईशत को बेहतर समत में लाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। मौशी टीम का इजलास बुलाया गया है। इसी ज़मन में कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की मईशत पर गौर किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। कराची समेत सिंध भर में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि पंजाब में भी कारोबार ओपन है। सिर्फ छोटी मार्केट्स खोलने की इजाजत है। दीगर शहरों में बाजारों में रश देखा जा रहा है। कहीं SOPs पर अमल हो रहा है, कहीं नहीं। लॉकडाउन के बाइस बंद कारोबार बहाल। मुल्क भर में मार्केटें ओपन। कराची समेत सिंध भर में 50 रोज बाद कारोबार बहाल हुआ। दुकानदारों को हफ्ते में 4 दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक महदूद कारोबार करने की इजाजत है। सरगर्मियां शुरू होते ही बाजारों में गहमा गहमी नजर आ रही है। कहीं SOPs पर अमल दरामद हो रहा है तो कहीं ना होने के बराबर है। कारोबार खोलने पर दुकानदार और शहरी खुश हैं। हुकूमती फैसले को हम खुशाइन करार देते हैं, क्योंकि ताजिर बहुत परेशान हो गए थे और हम ये भी समझते हैं कि बीमारी भी मौजूद है, तो इसके एतबार से बहुत अच्छा इकदाम है। लाहौर समेत पंजाब भर में भी 47 रोज बाद कारोबार बहाल हो गया। शहर में सिर्फ छोटी मार्केटें खुली हैं, कहीं कहीं रश देखा गया। हुकूमती इकदाम को दुकानदारों और शहरियों ने सराहा। बास जगहों पर ज़ाब्ता-ए-कार पर अमल किया गया, बास मकामात पर ऐसा नहीं हुआ। हर बंदे को केयर करनी चाहिए। केयर करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा और लोगों को इजी हो जाएगा कारोबार को कंटिन्यू करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो खुदा ना खासा कोई इशू वगैरह क्रिएट हो गया तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा गवर्नमेंट के लिए भी और आवाम के लिए भी। होना तो है, अल्लाह पाक हमें इससे बचाए, ये दुआ करेंगे। बाकी चीज़ें जो मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह ये हम यूज़ करें ताकि लोग आने वाले भी इजी हो जाए और हमें भी प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट कोई भी ना। गवर्नमेंट ने SOP जो कहा हुआ है उसकी तो खिलाफ वर्जी हो रही है, यानी अब वो जो केसेस मज़ीद हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी छोटे बाजार खुले हैं। पेशावर में GT रोड बाजार, सदर बाजार समेत दीगर मार्केट्स में कारोबार ओपन है, जहां गहमा गहमी उरूज पर रही। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि बाजार खुल गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद हम आ गए। हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है। तकरीबन 48 रोज बाद लॉकडाउन में नरमी की गई है और आवाम को भी चाहिए, ताजिरों को भी चाहिए इस बारे में एहतियात करे, मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो गयी। कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आया। सिंध भर में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 200 हो गई है। 24 घंटों में 537 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक बयान जारी करते हुए कहा कि 24 घंटों में कोरोना के 3730 टेस्ट किए गए, जो इनमें से 537 केसेस पॉजिटिव आए हैं। आज 68 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 2149 है। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि आज से कारोबार SOP के तहत दिए गए वक्त के मुताबिक शुरू हुआ है। इंतजामिया किसी को हरासा नहीं करेगी, लेकिन SOP पर अमल को यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अस्पतालों को तबाह कर दिया। SOPs कारोबार के मुताबिक होने चाहिए। कोरोना के नाम पर 2.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और मैं समझता हूँ कि दिन में लोग आराम करते हैं, शाम में लोग निकलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस चीज़ को कंसिडर करें कि मार्केट जो हैं वो शाम तक खुली रहें और फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन में 5 बजे से पहले कोरोना नहीं निकलेगा और शाम में निकलेगा। इंडस्ट्रीज़ खुली हैं, मार्केट्स खुली हैं, दुकानें खुली हैं, अलग अलग कारोबारी मामला शुरू हुए हैं, तो SOPs जो हैं वो उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई रेस्टोरेंट है उसकी SOPs और उसके साथ साथ अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो SOPs हैं वो एक जैसी हैं, वो सेपरेट होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स की बर्बादी हुई हुई है, जिस तरीके से इस 12 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा महसूस होता है कि पर्पसली अपने सारे हॉस्पिटल्स को तबाह किया है,